Hello and welcome to The Appointment. I am Pranjal Sharma. Joining me in a conversation today is Mr. Anil Agarwal, who is the founder and chairman of Vedanta Resources. Anilji, thank you very much for being on this discussion today. You have, after many years of struggle and a lot of smart investment decisions, your group is amongst the biggest in the world. And of course, you're a titan in Indian industry. Where do you see your group today? Where do you think, have you arrived where you thought that you would want to be today? No, I have to go a long way, and I'm very pleased that I am at this position. It was a passion. It was always the passion when I started. It's a phenomenal story. When I started cable business, and it was not working well, and I realized the raw material of cable is aluminum and copper, and I've gone backward integration. I started looking aluminum production, copper production, then gone into the mining, and the government announced the privatization of Balco and Hindustan Zinc. I acquired those companies. I listed my company abroad, raised $30 billion. Is amazing how when I look back, raising $30 billion abroad to an Indian person born in Patna, I need a lot of credibility, and I was very conscious about my credibility and my commitment, and raised that money, invested in India, and with $30 billion invested, $5 billion every year I paid taxes and royalties, and 50 to 60 lakhs people got the job. What a satisfaction. But going forward, I always said it's very important to eradicate poverty of our country and creating jobs. I see all over the world. I go to Chile, I used to go to Peru, I used to go to Southeast Asia. They were really poor. They didn't have clothes to wear on the top, and they have done well. 70-80% of the people getting job. I want my country to be better than them. We have all the potential, and one of the potential which I can support is a natural resource. We have a $600 billion of import, and our Vedanta is very conscious. I'm looking forward Vedanta to be more and more. I can't get better government than this. I really want to support this government, and I'm with this government in their reform process, and I'm looking. They are very focused on the natural resource, and I'm looking forward to be part of this. आपने ये भी बोला अनिल जी that oil, uranium, gold, zinc, potash, these are the 5 key pillars, और इन पर अगर ध्यान दिया जाए देश में तो भारत की भी तरक्की होगी और लोगों की भी तरक्की होगी. पूरा देश का नक्शा बदल जाएगा. आज हिंदुस्तान 100 मिलियन आयरन ओर बनाता है, 600 मिलियन बना सकता है. आज हिंदुस्तान में खाली 15% हम ऑयल बनाते हैं, 85% इंपोर्ट करते हैं, 85% वी इंपोर्ट. इट नीड टू बी प्रोड्यूस, इट नीड टू बी प्रोड्यूस. वी हैव टू, दिस गवर्नमेंट इज ऑल बाउंड टू अट्रैक्ट, सिंप्लीफाई द पॉलिसीज. As you said, 5 things, which is the most priority: uranium, iron ore, potash is we have in Rajasthan, oil and gas, gold, zinc, copper, anything and everything. We used to be called ourselves सोने की चिड़िया. क्या हम लोग बचपन में पढ़ते थे और विश्वास भी होता था कि हम सोने की चिड़िया हैं. आज उसको वापस लेके आना है. ये जो हमारे ये कॉन्फिडेंस लेवल चला गया है कि हमारे यहाँ नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है ऑन नेचुरल रिसोर्स एंड द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट विच कैन कम, एटलीस्ट 7 लाख करोड़ मोर कैन कम इन जनरल. आई एम टॉकिंग अबाउट इन कपल ऑफ ईयर्स इफ दे फोकस on the natural resource, and which they are focusing. आप क्या चाहते हैं, क्या कदम उठाए जाएं? What steps और policy changes are required जिससे हम इसको आगे बढ़ा सकें जैसे आपने बताया? सबसे ज़रूरी है जैसे ऑयल एंड गैस में है, इसको आज हाईएस्ट रॉयल्टी टैक्सेस ऑयल में है, सिंप्लीफाई करें.
बट अभी एक नई पॉलिसी आई है जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग की बात है, जिसको काफ़ी रिफॉर्मिस्ट कहा जा रहा है, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने बोला है। बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये रेवेन्यू शेयरिंग एक मॉडल अच्छा है जिसमें गवर्नमेंट को अपने पास से कुछ देना नहीं पड़े। गवर्नमेंट का माइंड जो है बहुत लास्ट पेनी टू हैव वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला मेकिंग मनी इन इंडिया शुड नॉट बी सिन। इट इज नाइस दैट द कंपनीज मेक मनी in very transparent manner. It is always good that they will make money and reinvest, and that's the very good model. They don't have to look at how much money the government is making, can we get a little bit more from them. Instead of that, more and more I'm looking Rio, Exxon, BHP, large company to come in and invest. We have a tremendous energy security which can be uranium. Is amazing fuel. These are and we have enough. लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि अभी भी एक मानसिकता है देश में, सरकार में, समाज में कि बड़ी कंपनियां आती हैं, सब कुछ निकाल के ले जाती हैं, लेकिन जिस तरह से उनको देखना चाहिए अभी भी समाज और सरकार उस तरह से नहीं देख पा रही है, इसलिए उनकी मदद नहीं कर पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट पूरी कटिबद्ध है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ये पैरेलल अप्रोच है। हमारी कंट्री में क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, थ्री साइड हमारे पास सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट है। और चाहिए क्या डेवलपमेंट के लिए? आज के दिन नहीं होगा तो कब होगा? एंटरप्रेन्योर आज ये दिस लैंड is a land of opportunity. This is a land of entrepreneur, and I compare this too with the America. When you read you see the Discovery Channel. It's very interesting. This is who built America. They don't say any politician. They talk about 5 industries: Rockefeller, J.P. Morgan, Wendell Waite, Henry Ford, Carnegie Mellon. The 5 people they talk about. Same thing with India, and you can be rest assured the Indian entrepreneur can do miracle. Give them a confidence which this government is giving. They will bring the best of, as I did it, bring the foreign investment. They will bring the best of partner. The business people will always be greedy. You can simplify as much as they can simplify because they will pay the taxes. Right. They will create a job. And this is very important for the natural resource area. Both sides we run. One is that we attract multinational big company to come in. We encourage our entrepreneur also. If you look at I'll give you example of Rajasthan. जैसे पंजाब है, पंजाब हमारे पूरे देश को खिलाता है, वैसे राजस्थान में इतना मिनरल है कि पूरे देश को आगे ले जा सकता है। They can be engine. हमारे यहाँ राजस्थान में मार्बल है, मार्बल 7 times more than Italy. You can imagine. अगर उसको हम लोग पार्ट करके 100 क्वारीज बना के उसको ऑक्शन करें और 100 नए एंटरप्रेन्योर खड़े करें, मेरे हिसाब से 1 मिलियन जॉब नए खड़े हो जाएंगे। उसको फिनिशिंग करके टाइल बना के अमेरिका में भेजें, कहीं भेजें, दुनिया में भेजें, बहुत बड़ा काम होगा। हमारे यहाँ राजस्थान में पोटाश है, पोटाश हम इम्पोर्ट करते हैं। पोटाश ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमारी धरती को बहुत अच्छी तरह से रखता है। उसको भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास रॉक फॉस्फेट है, हमारे पास ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस में आपको मैं एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 70% गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट की कंपनियां बनाती हैं, ONGC है, ऑयल इंडिया है। 30% में सारा ऑयल हम बनाते हैं। और हम भी जो है हमारे पास आज बाय एंड लार्ज कोई इनकम नहीं है, जो भी हम कमाते हैं वो सब गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जैसे हमने कहा है गवर्नमेंट को कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लीजिए, हमको 10 साल 15 साल की मोहलत दीजिए, उसमें हम कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज मार्जिनल फील्ड में हम 30% ऑयल बना रहे हैं। अगर हमको 15 साल की मोहलत लगेगी, हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग को एक बैकअप चाहिए, और बैकअप मिलेगा तो हम लोग रिस्क लेंगे, और बड़ी रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आज 50% ऑयल हम बना दें। सारा इसका जो भी आज के दिन
जो भी इनकम मिलती है नेचुरल रिसोर्स में मैक्सिमम वो गवर्नमेंट को। Anil ji, you've been telling us about the great potential India has in natural resources. The government policy is improving. Tell us a little bit about your plans. What are the opportunities you see for India? There is, you have made statements about increasing investments in India to the tune of more than $2 or $3 billion. अभी आप किस तरफ वेदांता को आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये दोनों बात मैं देख रहा हूँ। हमारा एग्जाम्पल लेके और लोग भी आए और हमारे जो प्लान है, हम आज 2 लाख बैरल ऑयल इंडिया में बनाते हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि इसको 5 लाख बैरल करूं और उसका 80% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को जाता है। अगर गवर्नमेंट हमें साथ दे रही है और दे और हमें अपॉर्चुनिटी दे और एक प्रोत्साहित करे, तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में तेल है और हमारे देखते देखते हमारे हिसाब से और लोग भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। एल्युमिनियम जो है ग्रीन मेटल है। 50% एल्युमिनियम जो है स्टील को रिप्लेस करेगा। आज रेलवे वैगन हो गई, ऑटोमोबाइल में 600 किलो आज एल्युमिनियम लगता है। एल्युमिनियम में मेरी बहुत दूसरी इच्छा है कि मेरे साथ साथ और लोग भी आगे बढ़ें। और आपने वो भी बोला मेक इन इंडिया के साथ साथ माइन इन इंडिया भी हो। माइन इन इंडिया, फाइंड इन इंडिया, बट एसएमईज जो है एल्युमिनियम में कम से कम भी 50 तरह के नए प्रोडक्ट डेवलप हो सकते हैं। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट से लेके 5 करोड़ से प्रोजेक्ट से लेके 500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी चीज है जो बाधा बन रही है? बाधा कुछ नहीं है, अवेयरनेस आनी है। आज हम ये जो देखते हैं कि हमारी ग्रोथ 10% हो, 10 क्यों हो, 25% क्यों नहीं हो? यहाँ पर राज्य सरकारों का क्या आपको लगता है योगदान रहेगा? क्योंकि राज्य सरकार जो है उनको भी आप जैसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी नीतियों में आप क्या बदलाव चाहते हैं? उनकी नीति बहुत अच्छी है, वो आज जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक बार बहू आती है तो उसको बहुत आपके लड़के को सजाते हैं, घर दिखाते हैं। जब वो बहू आ जाती है तो आप उसको वो केयर नहीं और नहीं देते हैं जो आ रही थी तब देना। तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए कि जो वो तो नीतियां बदल जाती हैं या बाद में जब एक बार निवेश शुरू हो जाता है तो लगता है कि देखो अब आ गया, अब इनको छोड़ देते हैं, अब आगे की तरफ जाएं। तो एक जो कंसिस्टेंसी है, लगातार एक ही नीति को सही बनाए रखें। सेंस ऑफ प्रायोरिटी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन से राज्यों में और निवेश बढ़ाना चाहते हैं आज? हमारे पास सभी, हम उड़ीसा में हमने बहुत बड़ा काम किया है, 10-12 बिलियन डॉलर लगाए हैं। राजस्थान में हमने 10-12 बिलियन डॉलर लगाए हैं। हमारे गोवा में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आयरन ओर का, उसको बढ़ा रहे हैं। कर्नाटका में है हमारे आयरन ओर का बिजनेस है। जिंक हमारे अगेन राजस्थान में है, 200 बिलियन डॉलर लगाया है। हर जगह लगाते जा रहे हैं। तकलीफों के दिन भी थे क्योंकि भाव बहुत गिर गए थे। उसके बाद भी हमारी जो टीम है, हमारी टीम जैसे वेदांता में है, मैं बहुत प्राउड हूँ। मैं तो एक बहुत सिंपल साधारण आदमी हूँ। हमारी जो टीम है उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। वो लोएस्ट कॉस्ट रखती हैं, क्वालिटी अच्छा रखती है। उसके वजह से हम कम से कम भी 10 स्टेटों में काम कर रहे हैं और हर स्टेट में हमारा बहुत कंड्यूसिव और बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है। एंड आई एम लिटरली लाइक एम्बेसडर फॉर देम। यहाँ पर माइनिंग क्षेत्र को लेकर, जो खनन क्षेत्र है उसको लेकर अभी भी लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं कि इससे आने से पर्यावरण खराब होता है, दूषित होता है। जो कंपनियां हैं वो ध्यान नहीं रखती हैं। क्या किया जा सकता है जिससे उद्योग और सरकार मिलकर, ये ज़रूरी उद्योग है लेकिन उस उद्योग को और बेहतर बनाया जाए? और एक तो ये है कि एनवायरनमेंट का है, दूसरा एक ऐसा सारे आजकल नॉर्म्स फिक्स हैं। आप यार देखें कि एनवायरमेंटल क्या नॉर्म्स होने चाहिए। और आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मदर अर्थ और ह्यूमन एक ही तरह के हैं। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे जब हार्ट सर्जरी होती थी जी, तो ब्लड बाथ होता था। हार्ट की सर्जरी होती थी, दुनिया भर का हार्ट बाहर निकालते थे, उसको रिपेयर करते थे। अब नॉन इन्वेजिव सर्जरी आ गई है। हाँ, वही मदर अर्थ के साथ है। हमारे पास ड्रोन आ गए हैं। सारी मूवमेंट जो है, अभी हमें कोई मालूम है एग्जैक्टली कहाँ पे
सोना है, कहाँ पे ऑयल है। एग्जैक्टली वहीं जाके आप निकालें उसको फिर से। जी, कोई माइक्रोस्कोपिक ज़्यादा, तो इन्वायरमेंटल हमने देखा है और बेटर हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने माइनिंग की है वहाँ पे बंजर एरिया था, वहाँ ग्रीन हो गया, क्योंकि वी टेक केयर ऑफ दिस। तो अगर आदमी कॉन्शियस है, अवेयरनेस है, और हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं सेफ्टी इन्वायरमेंट में, और आजकल सारी दुनिया ऐसी है, हम ही नहीं है, ये कॉन्शियसनेस आ गई है। तो उस कॉन्शियसनेस से कहीं भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात पक्की है कि हम, दुनिया नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान तरक्की करे। तो लोग कई तरह के अटकलें लगाते हैं और बाधाएं सामने रखते हैं और इसका एक सहारा लेते हैं कंपनियों को आगे बढ़ने से। जी, क्योंकि उससे इंपोर्ट हो। हमारा जो हार्ड जो पैसा है वो सोने में खर्च होता है। आज आप दो चीज़ आप देख लीजिए, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन सोने का हिंदुस्तान में होता था, हमारे कोलार में। और डायमंड जो था, जो कि कोहिनूर हो रहा है की इतनी बात हो रही है, वो हमारे गोलकोंडा का है जी, हमारे छत्तीसगढ़ का है जी। तो जब दो चीजें आपके सामने हैं, तीसरा मार्बल जो है, आज हमारा ताजमहल 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो हमारे राजस्थान का है। तो हमको इससे ऊपर उठकर और आगे बढ़ना चाहिए और सरकार और उद्योग को और समाज को ये मानना चाहिए कि जब तक अपनी कंपनियों को बढ़ावा नहीं देंगे और अपना रोजगार नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम हमेशा आयात पर निर्भर रहेंगे। जी, और ये आपको एंटरप्रेन्योर को एक सहारा देना ही पड़ेगा, एक उनको पोजीशन देनी ही पड़ेगी। आप नहीं देंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं, वो करेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे तो बाहर वाले नहीं आएंगे। ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, ये इतना बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को एंटरप्रेन्योर ही देख सकता है। आप सोचेंगे कि बाहर वाला आके यहाँ लैंड लेके लोगों को इस्टेब्लिश करके काम करे, वो कर नहीं सकता है उसको। और जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे हजारों लोग हैं, आज का जो हिंदुस्तान का नया जो युवा वर्ग है वो इतना डायनामिक है और इतना सेंसिबल है और इतना कॉन्शियस है कि उस पर आपको उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसी से नेचुरल रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, उसी से काम आगे बढ़ेगा। सिंप्लीफाई पॉलिसी कीजिए, बड़ी कंपनियां जो है वो नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करेंगी, उसको प्रोसेस करने के लिए, एसएमईज बनाने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योर आए, और उसके बाद थर्ड स्टेज में उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो। ये तीनों स्टेज साथ साथ। Anil ji, let us know a little bit about your global plans. You are now a global brand. Your company has operations in so many countries and you are in the same rank as the leading mining majors of the world. अब आप वेदांता को पूरे विश्व में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देखिए, हर माइनिंग कंपनी, ऑयल कंपनी की एक बेस होती है। आप देखेंगे रियो टिंटो जो है ऑस्ट्रेलिया से है, BHP इंग्लैंड से है, आपकी वाले जो है वो ब्राज़ील से है, एंग्लो जो है अफ्रीका से है। हमारा एक विज़न था, वेदांता इंडिया से है, उसके बाद उनके बाहर काम है। और हम आज अफ्रीका में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जाम्बिया का मेजर ऑयल कॉपर का प्रोडक्शन हमसे होता है। हम नमीबिया, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, यहाँ पे आयरन और जिंक बनाते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वेदांता स्टिल विल रिमेन एज ए इंडियन कंपनी, दो इज ए इन ट्रू सेंस इट्स ए इंग्लिश कंपनी। एंड किसी को हमने ऐसा ब्रांड बनाया है कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो एक व्हीकल ये भी है जो कि वेदांता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 10 साल तक हमने लोगों को डिविडेंड दिया है, हमने लोगों को रिटर्न दिया है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ है। In 10 years, Anil ji, where do you want Vedanta to be? Or 20 years? What is your vision for Vedanta? Because you brought it to a very good position. यहाँ से और ऊंची छलांग लगाना जो है ज़्यादा बेहतर होगा और मुमकिन भी होगा। आप कहाँ देखना चाहते हैं वेदांता को अगले 10-15 सालों में? मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे साथ साथ 100 और इंडस्ट्रियाँ सामने चले, और हमारी जो है कम से कम भी नेचुरल रिसोर्स में आज हम हिंदुस्तान में कम से कम $100 बिलियन का गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दें। ये तो बहुत बढ़िया बात की आपने देश के लिए। मेरा ख्याल है कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो इसको वेलकम नहीं करे। साथ में ही एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया
वेदांता एज यू सेड कि आप चाहते हैं कि भारत से एक उपजी हुई कंपनी जो अब देश में यू आर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. What are the main challenges you see, or what are the main opportunities you see for a company like Vedanta from India in the global atmosphere? इंडिया में जैसे सबसे बड़ा चैलेंज रहता था ब्यूरोक्रेसी का. तो हम प्रधानमंत्री जी की बात बहुत लोगों गले उतरी है कि हमारा वी डोंट हैव रेड टेपिज्म, वी हैव रेड कार्पेट. लोगों के दिल में बात उतरी है कि आई विल टेक द इकोनॉमी from $2 trillion to $20 trillion. Right. So these things, we are one of the ambassador. जब हम जाते हैं, हमने कहा कि हम $30 बिलियन आप कर लेंगे, हिंदुस्तान में लगाएंगे, हम रिटर्न देंगे. हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. आप जाएंगे, आपको वेलकम होगा एवरीवेयर, एंड दैट परसेप्शन बीइंग क्रिएटेड. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. जो आप देख रहे हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा है. और सबसे ज़रूरी बात है कि रोजगार की और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़े. हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे जो ज़बरदस्त मैसिव जो यंग जनरेशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे नीड जॉब. एंड आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल. I feel very responsible that we should create the job. And how we can create the job is for every lifestyle of our company or of our citizen or our people. How can, because the needs are very small. Needs of Indian people are very small. We can generate the job, and I'm looking one of the responsibility of mine in my area, in oil and gas, in natural resource, how I can expand and make this company as an institution. It's not family run company, it's going to be institution. Most of the wealth going back to the society, and that's what very American model. And I'm very impressed by the American model, whether it's the Rockefeller, whether it's the Vanderbilt. And I know that you are giving at least 75% of your personal wealth for philanthropic activities. आप समाज के लिए अपनी जो निजी संपत्ति है वो आप अलग अलग कार्यों में लगा रहे हैं. देना ही पड़ेगा. इसके बिना आप चाहें कि आपकी ग्रोथ हो नहीं सकती है. जो दे दिया वो अपना है, जो रह गया वो सपना है. अनिल जी, इसी मुकाम पर मैं ये बातचीत खत्म करूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू.